बीजेपी पक्षर कामाख्यानगर निर्वाचन मंडली बारुआर 8 गोटी पंचायतर बूथ स्तरीय बैठक। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर निर्वाचन मंडली बारुआ 3 नंबर जोन 8टी पंचायतर बीजेपी बूथ स्तरीय मुख्य संगठक और बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मानक प्रथम बैठक खटुआहता बंगला निकट में आगामी निर्वाचन परिप्रेक्षी विशाल कर्मी समावेश अनुष्ठित होइछि। बारुआ मंडल सभापति विजय कुमार मल्लिक नेतृत्व में संगठक शिशिरी कांत बेहेरा, वरिष्ठ बीजेपी नेता ललित कुमार साहू, जिला उपसभापति पवित्र कुमार विश्वाल, जिला संपादक मातृप्रसाद नंद, ओबीसी मोर्चा राज्य कार्यकारिणी सदस्य अरुण कुमार नायक, जिला मीडिया सेल प्रभारी चंदन कुमार बेहेरा, ढेंकानाल लोकसभा प्रार्थी रुद्रनारायण पाणी, कामाख्यानगर विधानसभा प्रार्थी शत्रुघ्न जेना, जिला सभापति नरेश चंद्र महापात्र प्रमुख मंचसीन थिले। एक कर्मी सम्मेलन लोकसभा प्रार्थी और विधानसभा प्रार्थी को विपुल संख्यार मतदान करी ढेंकानाल जिला और कामाख्यानगर निर्वाचन मंडल को एक दुर्नीतिमुक्त शासन करने को कर्मी मानू आह्वान देते। এই দুইটি আসନରେ বিপুল সংখ্যাରେ জয়যুক্ত କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ଓ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠକମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ନ୍ୟୁଜ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷର ସୁଶାସନ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତିଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦେଖା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ। ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମୋଠାରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅନେକ କାମ ବି ମୁଁ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଏହି କାରଣରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିବାସୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାଖ୍ୟାନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୁଆ କେ ମଣ୍ଡଳର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଣକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷେ ସାନ ଜନୈକ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠବସ କରୁଥିବା ତଥାକଥିତ ସଚିବଙ୍କର ପଦଲେହନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅଣଓଡ଼ିଆ କଥାରେ ଉଠବସ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଇ ମୋଦିଙ୍କର ସଫଳତାର ଆଧାରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ସଫଳତାର ଆଧାରରେ କିଭଳି ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ସପକ୍ଷରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କାମାଖ୍ୟାନଗର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ଏଇ କାମାଖ୍ୟାନଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି এই ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କି ଆଜି
भारत में कहीं सारा विश्व में श्रेष्ठ राजनीतिक दल कि सबुठ श्रेष्ठ राजनीतिक दल एठी आम मान नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे कि विकास द्वारा और व्यक्तित्व द्वारा सारा विश्व में नाम कर सारे सी सारा विश्व नेता से ही दलर आम समस्ते गोटे गोटे एवं कर्मकर्ता ये प्रतिनिधित्व करूँ से बड़ सौभाग्यर कथा एवं जो भली विकास भारत वर्ष नेतृत्व में प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व तथा ओडिशा आमर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नेतृत्व में जो विकास धारा क्षिप्र गति आगे चलती से निश्चित भाव अनुमान करुँ आज भी जो कर्मकर्ता मान गोटे बैठक थी एथुर देखिली उत्साहित आग्रह ये आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी विपुल संख्यार नेतृत्व कर तो निश्चित भाव में जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी गोटे गरीब लोक पठे ये जो सरकार अच्छी तार लोक प्रतिनिधि तार सरकारी मिलमिशे से लोकों पाखे से जहाँ जहाँ सबू कार्यक्रम आसूची लोक हितपाई आसूची ताहा ठीक रे पहुँची पारनी तेणु आम भावुँ भारतीय जनता पार्टी लोक प्रतिनिधि हेले सरकार हेले निश्चित भाव में जहाँ जहाँ आसूची ये लोकों पाखे पहुँची पार। मो रविनारायण साहू भारतीय जनता पार्टी जन कर्मकर्ता कामाख्यानगर कौन कहे आज जो लोकसभा प्रक्रिया आ दुर्नीति आम कहे कर्मी मैंने कहते दुर्नीति होनी बोली आपण देखुए पेपर मीडिया में देखुं सत्य कथा कहले समस्त कष्ट लगे ये बर्तमान जो विधानसभा प्रार्थी और आमर जो राज्यसभा ये आम जिला पार्लियामेंट प्रार्थी आम दुजन जाक देते आम बहुत आशावादी और बहुत खुशी अच्छु जे निहाती से दुजन जितबे कारण रुद्रनारायण पाणी जड़े होती कल्पवृक्ष जीवन सारा से माने ब्रह्मचारी रही 1975 मसीह आज पर्यटन दल सहित संपृक्त अच्छा त्याग तांकर जीवनी जदि किए जान ज्ञान किए जान जे कि संविधान जन पोक से भली लोक व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी न्यस्त कर पार्लियामेंटर दायित्व तेणु ढेंकानाल लोकसभार दायित्व जो नहीं से निश्चित भाव विजयी हेबे कारण वर्तमान ओडिशा सरकार ताकर मनमुखी शासन करी जो प्रकार दुर्नीति व्यस्त लिप्त अच्छा संगे संगे खणी माफिया बाली माफिया एवं लास्ट रे जमी माफिया ये समस्त कार्य को निज हाथ को नहीं मंत्री आम बसी निश्चित भाव में जो मैंने अच्छा एवं जो नुआ जन ठिया सामल बाबू जन नुआ ठिया ना भी कई लोग जानी ना ठीक अच्छे लड़े तो समस्त करा पड़ो आ बहुल भाव में भारतीय जनता पार्टी आम रुद्र भाई जीतिक आसवे और निश्चित भाव में ये सरकार करेंगे आमर पार्लियामेंट को जी मोदी जी अब की बार 400 पार ये जरूर करेंगे हम इसको बाद या पर आसला कौन आम पार्लियामेंट विधानसभा प्रति बहुत लोग कहते दल लोक विभिन्न प्रकार लोक मैंने कहते अरे 17 जन छड़ा अनलोक देते भल होता कहीं विगत 2019 मसीह जो शत्रुघ्न जेना 68,000 भोट 500 भोट पाई से कौन छोटिया से कौन छोटिया माने गणना थिला केवल 15,000 भोट रे हारी व्यक्ति को दिज्वनी तो कौन जड़े नुआ कैंडिडेट देकर आउ थे ट्रायल कर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ कैडर पार्टी नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व जहाँ को देते से जहाँ को देता आम ग्रहण करता आम पाखे अनुभवी नेता से जन अच्छा तेणु आम निश्चित भाव में शत्रुघ्न को जितेबाई आम जितेबुनि बर्तमान आपण मैंने जितेबे कारण आपण दुर्नीति आम लोक मैंने सब अतिष्ठ हो सारी से लोक मैंने बर्तमान टिपरे आप देखदेवे जे दुर्नीति बेसी दिन नुहे बोली निश्चित भाव में एथर भारतीय जनता पार्टी पद्म फूल निश्चय जितब एवं आपणकर जो कला साम्राज्यर पर्दाफाश हम मोदी जी एथर कहते अरे मुझे 10 साल दिया था आप लोगों ने मैं उस 10 साल में ट्रेलर दिखाया पूरा पिक्चर दिखाऊंगा कब मालूम है जिस दिन पार्लियामेंट में 2024 में फिर आप प्रधानमंत्री आसन में बैठूंगा तब तो उसके दूसरे दिन से नया पिक्चर रिलीज होगा आप लोग देखोगे।